All right. Hello everyone. Welcome to our day 3 of our lecture of GAT. So in the GAT class, I taught to you people about some of the most interesting things such as peptic ulcer, how to correlate peptic ulcer with other subject. Her cheese, yes, we discussed. But right now, let's get back like some small child who is trying to understand. एक छोटा बच्चा जो समझने का कोशिश कर रहा है जीआईटी का मेडिसिन, ऐसा सोच के चलते हैं, ठीक है। तो वैसा सोच के चलते हुए ना, तो हम लोगों को वी कम एंड अक्रॉस टू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज वॉमिटिंग, माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सी प्रॉब्लम होगा? वॉमिटिंग। तो ये वॉमिटिंग को कैसा डील करे भैया? वॉमिटिंग को डील करने का तरीका क्या है? वॉमिटिंग को ट्रीटमेंट कैसा करे और वॉमिटिंग क्यों होता है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाई वॉमिटिंग अकर्स, how do we treat vomiting, and what are the important points which we need to know about the vomiting when it comes to any exam in the world. So let's get to that. First and most important aspect, what I want to teach you people is that यार हर बंदा पढ़ा देगा एंटीएमेटिक्स, हर जगह मिल जाएगा एंटीएमेटिक्स का लेक्चर, एवरीवेयर यू गेट एंटीएमेटिक्स लेक्चर, बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस you don't get one clear explanation that is called why does vomit occur and why exactly we are giving that drug. If somebody teach you people why exactly we are giving that drug, क्यों दे रहे हो वो ड्रग, और at the same time अगर कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, अगर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, what is that? That is your most important aspect. If they are teaching you people why vomiting is occurring, and दूसरी चीज वॉमिटिंग को कैसा ट्रीट करें, तो बहुत आसान होगा। लेट मी टीच यू पीपल दैट। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड एज, माय डियर डॉक्टर्स, देयर दैट इज ओनली कॉल्ड एज बी। भाई ये किसी का बीवी नहीं है, इट्स नॉट वाइफ ऑफ समबडी, इट्स अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ, सम पीपल माइट बी थिंकिंग नाउ, सर आप तो यार ऐसा बचपन का जोक कर रहे हो। गाइस, वी आर ट्राइंग टू लर्न मेडिसिन हियर, थोड़ा बहुत जोक करते हैं, एवरीबडी डज, ओके, बट वी आर नॉट, आई एम नॉट trying to enter into something called as pervertness. I will be open and tell you people, so that is not the way to teach a medicine. Medicine आपको सीखना है, थोड़ा बहुत जोक होनी चाहिए, ज्यादा बहुत मेडिसिन होनी चाहिए, then only you'll become a very good doctor. आपको अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए या बस मजाक करना चाहिए? खुद मजाक बन जाओगे तो उसके ऊपर फोकस मत करना। Try to learn about this. What is blood brain barrier? Blood brain barrier के बारे में पहले बच्चों ये एक सीख लो। Blood brain barrier is a type of capillary. ये क्या है? कैपिलरी। अब कैपिलरी बोलते हैं, आप लोगों को क्या लगेगा? सर कैपिलरी, ये तो मुझे कभी लग ही नहीं रहता। अब लगेगा, देख लीजिए। When we are talking about blood brain barrier is a capillary, but only thing about this type of, what type of capillary is this? This is only called as a tight junction. कौन है? टाइट जंक्शन। What is tight junction? Tight junction is nothing but ducts of, when you take a normal capillary, normal capillary ऐसा होता है कि एक एंडोथेलियल लेयर होगा, ये एंडोथेलियल लेयर के ऊपर ऐसा तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसा तुम्हारा एंडोथेलियल सेल्स होगा। सो बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कौन है? एंडोथेलियल सेल। So these are the two things which we encounter in a capillary. But when we are talking about the tight junction, endothelium ऐसा होता है, ये एक एंडोथेलियल सेल मानो, ये दूसरा एंडोथेलियल सेल मानो, ये तीसरा मान लो, ये चौथा एंडोथेलियल सेल, पांचवा। सो फर्स्ट एंडोथेलियल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, like that. All the endothelial cells are attached together. There is no gap between them. That is only called as blood-brain barrier. If you don't know blood-brain barrier, then you will be struck with the pharmacology. That is why I am teaching you people. So be very careful when we are talking about blood-brain barrier. Now listen to me very carefully. This blood-brain barrier, let's consider this side we have brain. Here we have peripheral circulation. यहाँ पे कौन है? Circulation. अब circulation के अंदर there are so many substances such as water, हाँ जी, there are glucose, yes, glucose के अलावा other things such as drugs, such as what is that? Drugs, okay. What else we have? We have other compounds such as, for example, unnecessary compounds such as toxins, है ना? तो all these things are present in your circulation. So now my blood-brain barrier, this, who is this? Blood-brain barrier. कौन है ये? Blood-brain barrier. This blood-brain barrier will decide what will go into the brain
what will not go into the brain. So unnecessary substance है, it will not allow it to go. अगर necessary substance है, it will allow the substance to pass. So when we're talking about blood brain barrier, guys, I want you people to understand one of the most important, first and most important MCQ. What is that? Drugs. What is that? Drugs. When we are talking about drugs, which are the drugs which can cross the blood brain barrier? Drugs which cross the blood brain barrier. So the drugs which cross the blood brain barrier are the drugs which are usually fat soluble. Fat soluble. Okay, so this is a pharmacology का क्वेश्चन. फार्मा के अंदर स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्पेशली फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जब पढ़ रहे हो उसके अंदर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एनी टाइप ऑफ ड्रग विच इज ए फैट सॉल्युबल, वो क्या कर सकता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है. सो MCQ नंबर 1 फॉर टुडे इज डन. Okay, now once we're done with this MCQ, let's get into the next important. So what exactly I want you people to learn? So we are trying to learn, sir, आप तो मुद्दे शुरू करते हो, प्रॉब्लम शुरू करते हो, start the problem and you go somewhere else and you come back to the problem. Of course, vomiting. What is that? Vomiting. So when we are talking about vomiting, why it will occur? Vomiting, why it will occur? So point number 1, vomiting होने का point number 1. The point number 1 is called as a chemo trigger zone. कौन है? Chemo trigger zone. So chemo trigger zone, why am I teaching you people? Especially if you are attempting the exams. Exams के अंदर chemo trigger zone के बारे में if they want to ask you a question based on the physiology, the physiological question will be this one. There is no blood brain barrier. There is no blood brain barrier. So there is no blood brain barrier in the chemo trigger zone. There is no blood brain barrier in the chemo trigger zone. And I will give you one of the classic example. There is no blood brain barrier. There is no blood brain barrier in one more location. The location name, the other location where there is no blood brain barrier. I want you people to remember some parts of hypothalamus. Some parts of the hypothalamus also has no blood brain barrier. सर आप GIT पढ़ा रहे हो, ब्रेन के बारे में बात कर रहे हो. अरे भैया GIT तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कीमो ट्रिगर जोन. कीमो ट्रिगर जोन के अंदर क्या होता है डॉक्टर साहब? इन द कीमो ट्रिगर जोन वी हैव सम रिसेप्टर कॉल्ड एज D2 रिसेप्टर. व्हाट इज दिस D2 रिसेप्टर? D2 रिसेप्टर द रिसेप्टर जो स्टिमुलेट होता है. ये D2 रिसेप्टर किससे स्टिमुलेट होता है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? D2 रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड. D2 रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डोपामाइन. With the help of dopamine. With the help of what, Daksa? Dopamine. So dopamine will trigger D2 receptor. D2 receptor को trigger करते ही क्या हो जाएगा? Vomiting होगा. What will happen? Vomiting will occur. So the first and most important, what is the factor which is causing the vomiting? That is dopamine receptor. Very good. Apart from that, one of the most important, Daksa, most of you people see, even being a FMG, आप कहीं पे भी, be it anywhere you are studying, one or the other point of the time, you come to Gautam Nagar, है ना? तो in the Gautam Nagar, famous क्या है? Nala. In Gautam Nagar, what is famous? Nala. So when you go near Nala, you get a bad smell. So bad smell. अगर bad taste, ये चीज भी क्या कर सकता है? दे कैन ऑल्सो ट्रिगर वॉमिटिंग. सो बैड स्मेल एंड टेस्ट अगर आपको वॉमिटिंग करवा रहा है, उस स्मेल से दूर रहिए. यू कैन अवॉइड द वॉमिटिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एल्स कैन कॉज द वॉमिटिंग? हमारा दूसरा फैक्टर हो गया. ठीक है, चलो लेट्स गेट इनटू द थर्ड फैक्टर. व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? डॉक्टर दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ 5HT. व्हाट इज दैट? 5HT. Now when I'm talking about 5HT, I want you people to understand 5HT is something called as serotonin. सेरेटोनिन. अब बहुत सारे लोगों ने क्या करेंगे, अभी सर सेरोटोनिन 5HT है, हर फैकल्टी भी तो यही पढ़ाई है, तो आप कौन सी बड़ा उखाड़ लिया? भैया मैं उखाड़ने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ टू कोरिलेट. व्हाई एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कॉल इट एज 5HT, वो भी पढ़ा देता हूँ. लेट मी टीच यू पीपल लिटिल बिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री. हम तो प्रॉमिस किए थे, जयशंकर सर से प्रॉमिस किए थे 5 सब्जेक्ट, मैं तो घुस रहा हूँ 6 सब्जेक्ट के अंदर. दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. 5HT का फुल फॉर्म होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन. 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन.
What exactly is this 5-hydroxytryptophan? It is a derivative which is coming from where? Which is coming from somebody called as your amino acid tryptophan. Amino acid, what is that? Tryptophan. So you have a amino acid called as tryptophan. That tryptophan amino acid will undergo something called as hydroxylation reaction at the level of which carbon atom? At the level of 5th carbon atom, and it will become a 5-hydroxytryptophan. तो आप लोगों को कार्बन का नंबर नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना, बस इतना याद रखना 5-hydroxytryptophan इज द नथिंग बट सेरोटोनिन, इज नथिंग बट सेरोटोनिन. सेरोटोनिन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज ओनली कॉल्ड एज 5-hydroxytryptophan, इसीलिए बोलते हैं उसको 5-HT. आज समझ में आ गया? चलो अब 5-hydroxytryptophan. अरे चलो रुको रुको रुको, अर्जेंट क्यों? या हम पे डॉक्टर साहब पहली बात MCQ करके हाईलाइट करो, MCQ करके हाईलाइट करो. Why you need to highlight the MCQ? Because they will ask you serotonin is derived from which amino acid. This is a standard MCQ which can be asked in both PG and FMG exam. It's very simple question which can be asked anywhere. So I want you people to focus on this point. Okay. Now listen to me. This serotonin will go and stimulate some receptors in the brain called as 5-HT3 receptor. अब 5-HT3 का मतलब क्या हो गया? तो सेरोटोनिन का ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है. मींस सेरोटोनिन हैज मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, ऐसा बहुत सारे रिसेप्टर है. बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर, हर एक रिसेप्टर का काम अलग अलग होता है. सो व्हेन 5-HT3 receptors are stimulated, the patient will get vomiting. Apart from other things, other causes which induce vomiting, they are chemotherapy. कीमोथेरेपी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच. क्वेश्चन नंबर 2, कीमोथेरेपी के अलावा और कौन सी है? द क्वेश्चन नंबर 2 इज मॉर्निंग सिकनेस. कौन सी है? मॉर्निंग सिकनेस. ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस किस में आता है? मॉर्निंग सिकनेस रात में ज्यादा पढ़ के सुबह उठने में आता है कि नहीं? मॉर्निंग सिकनेस मिलता है, यस, वेरी गुड, दैट इज इन द प्रेग्नेंट फीमेल, दैट इज इन द प्रेग्नेंट फीमेल. सो प्रेग्नेंट फीमेल में मॉर्निंग सिकनेस का कॉज क्या है? गायनी भी पढ़ा देते हैं थोड़ा. कॉज ऑफ मॉर्निंग सिकनेस. हाँ जी, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है फिर भी कमेंट में डाल दीजिए आंसर. ठीक है. सो कॉज ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, व्हाट इज द कॉज ऑफ मॉर्निंग सिकनेस? दैट इज बिकॉज ऑफ वन हार्मोन. व्हाट इज द हार्मोन? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज बीटा HCG. बीटा HCG का फुल फॉर्म होता है बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. व्हाट इज दैट? बीटा ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin. Very good. So we have morning sickness. Morning sickness coming from where? Pregnancy. Very nice. So इसके अलावा there are other things such as food smell, taste, and apart from that I want you people to understand there is one important aspect of vomiting. अब सब लोग भूल गए यार, क्या है? That is one of the most important thing, that is your vestibulocochlear nerve, that is vestibular apparatus. वेस्टिबुलर अपैरेटस. वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलूंगा ना, कोई भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट वेस्टिबुलर अपैरेटस से मैं बेहतर एग्जांपल दूंगा. अरे जब हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, इन द अम्यूजमेंट पार्क हमारे पास वियर्ड राइड होता है. कई राइड होते हैं. रोलर कोस्टर मान लो, मतलब सिंपल रोलर कोस्टर है तो ठीक है, बट इफ यू हैव ए रोलर कोस्टर विच इज गोइंग डाउन अप डाउन लाइक दिस, बाहर आते क्या करोगे? उल्टी करोगे. वाई दैट उल्टी अकर्ड? बिकॉज तुम्हारा वेस्टिबुलर अपैरेटस हैज बीन एक्टिवेटेड. ये वेस्टिबुलर अपैरेटस कैसा एक्टिव करता है लीडिंग टू वॉमिटिंग? ये वेस्टिबुलर अपैरेटस ना भैया जाता है, इट विल एक्टिवेट यम रिसेप्टर. यम रिसेप्टर मतलब क्या होता है? असिटाइल कोलिन रिसेप्टर. याद रखियो बच्चों, यम रिसेप्टर कौन होता है? असिटाइल कोलिन रिसेप्टर. असिटाइल कोलिन का रिसेप्टर दो होते हैं, यम कोलिनो रिसेप्टर, एन कोलिनो रिसेप्टर. ठीक है. यम रिसेप्टर के अलावा और कौन होता है डॉक्टर साहब? देयर इज H receptor, that is called as histamine receptor. Already I had taught you people H2 receptor कहाँ पे मिलता है? H2 receptors are found in parietal cell, and यहाँ पे कौन होता है? H1 receptor होती है. कौन होता है? H1 receptor होता है. So this one will also cause what is that? Vomiting. So all these factors, देखो एक बार, इतने सारे factors है जो vomiting cause करवा सकते हैं, है ना. अब डॉक्टर साहब, माय स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट. मेरा स्टूडेंट को ना बस एक बार पैथोजेनेसिस पढ़ाओ, वो खुद बोल देंगे कि ट्रीटमेंट कैसा करें. तो अब बताने शुरू हो गए ऑलरेडी. अरे वेरी सिंपल डॉक्टर साहब, शुरू करो, एक एक को ब्लॉक करने लग जाओ, ऑटोमेटिकली वॉमिटिंग रुक जाएगा.
चलिए फिर ब्लॉक करते हैं. सो व्हेन वी वांट टू ब्लॉक दैट, आई विल टीच यू पीपल इन दिस. मैं अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर 100% MCQ आने वाली टॉपिक, 100% MCQ आने वाली टॉपिक में पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स मैं पढ़ाना चाहता हूँ डोपामाइन के बारे में. डोपामाइन रिसेप्टर, व्हाट इज दैट? D2 रिसेप्टर. सो D2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट. ठीक है, तो डॉक्टर साहब मेरा बात सुन लीजिए. by the time when we finish our systemic lecture, all the general things will be covered. कैसा? So जैसा D2 एंटागोनिस्ट पढ़ा है ना, D2 एंटागोनिस्ट पढ़ा दिया, तो अब एंटागोनिस्ट का डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूं. तो एंटागोनिस्ट का डेफिनेशन इज एनी ड्रग which has affinity to a receptor, but no intrinsic activity. अब आधे लोग सोच रहे होंगे, अरे सर एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉकर है. अरे ब्लॉकर है भैया, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा ना इसके ऊपर से, डेफिनेशन के ऊपर से पूछेगा, वो भी उल्लू नहीं है. सो एनी ड्रग विच हैज ए एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ऐसा पढ़ाऊंगा तो आप लोग मेरा ऊपर प्यार नहीं, आप लोग ऑटोमेटिकली गुस्सा दिखाओगे. लेट मी टीच यू पीपल हाउ डज दिस थिंग वर्क. ओके, सो इट्स वेरी इजी, आई विल टीच यू पीपल. सो सुनो इधर, सी ऐसा एक सेल है, ये सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर के ऊपर आई हैव ए ड्रग एक्स. कोई भी ड्रग, तुम्हारा एक्स को याद मत करना, अब ड्रग एक्स को याद करना. ठीक है, दिस ड्रग एक्स केम एंड बाउंड विद द रिसेप्टर. ये आके क्या कर दिया? रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया. बाइंड करने के बाद सेल के अंदर, सी एनी रिसेप्टर इफ देयर इज स्टिमुलेटेड, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए. बट इफ द ड्रग बाइंड्स एंड देयर इज नो चेंज, मतलब ना ही सेल स्टिमुलेट हुआ, ना ही सेल के अंदर कुछ एंजाइम बना, ना ही सेल के अंदर कुछ और बना, कुछ भी नहीं हुआ. देयर इज नथिंग, नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब नो इंटरनल एक्टिविटी इन द सेल, देन ओनली वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ए एंटागोनिस्ट. नाउ ऑटोमेटिकली रिवर्स करो, एगोनिस्ट का डेफिनेशन आएगा. ठीक है, चलो यहाँ पे फार्मा से आप लोगों का जनरल फार्मा भी पढ़ा दिया सिस्टेमिक के साथ साथ. चलो D2 एंटागोनिस्ट और व्हाट? D2 एंटागोनिस्ट पूरा step by step. Mechanism of action is what? They block D2 receptor. If they are blocking D2 receptors, what is going to happen? Vomiting will not occur. So when they are blocking the D2 receptor, what is the drug? The drug which I want you people to learn is called as metoclopramide. ये metoclopramide के बारे में कहानी क्या है? That's a metoclopramide. I want to teach you people in depth about the metoclopramide, क्योंकि I'm having a strong gut feeling that metoclopramide के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, because the theory is very much interesting. Metoclopramide is such a drug, it will do what? It will cross blood-brain barrier. अगर ब्लड ब्रेन बैरियर पार करेगा, जरा पीछे जाके देखते हैं. पीछे जाके कहां पे? लेक्चर का पीछे. यहां पे जरा देख लीजिए डॉक्टर साहब, आई टोल्ड यू पीपल, कीमो ट्रिगर जोन हैज नो ब्लड ब्रेन बैरियर है ही नहीं. अगर ब्लड ब्रेन बैरियर इफ इट इज नॉट देयर, बट स्टिल आवर ड्रग इज क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर. अब ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर पार करेगा, दैट मीन्स आवर ड्रग अपार्ट फ्रॉम द कीमो ट्रिगर जोन, हमारा ड्रग कीमो ट्रिगर जोन के अलावा दूसरे जगह में भी पहुंचेगा. सिंपल सी बात है यार, एक गेट लगा हुआ है, तो हमें क्या है कि यहाँ पे गेट के बाहर एक कोने सिक्योरिटी गार्ड है. मैं बोला कि सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके पूछना गेट कितने बजे खुलता है. ठीक है, आपको पूछ के वापिस आना था, ये बैरियर था. आप क्या कर दिए? सिक्योरिटी को गुना पूछे, सीधा अंदर जाके किसी और को पूछने चले गए. मीन्स you had work here rather than that आप अंदर भी चले गए. The same way our drug had work outside, but our drug went into the brain also. Once it goes into the brain, now what will happen? It will block D2 receptor. What is that? D2 receptor मतलब कौन है? डोपामाइन रिसेप्टर इन द ब्रेन. ये क्या करेगा? D2 receptor इन द ब्रेन के अंदर D2 receptor को अगर ब्लॉक करेगा, इसके वजह से दिक्कत क्या होता है?
है. The problem with D2 receptor blockage in the brain is it will lead to increased production of prolactin. So if anybody is confused, I'll tell you people. So I want you to understand. सिंपल सी तरीका है. डोपामाइन कौन है? डोपामाइन. Okay. If dopamine increases, automatically there will be decrease of prolactin. अगर सेम थिंग, अगर डोपामाइन कम हुआ, ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन. डॉक्टर साहब देख लो, एक हार्मोन है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन. ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है कौन? डोपामाइन. प्रोलैक्टिन इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? डोपामाइन. सो नेक्स्ट एमसीक्यू कवर्ड. द एमसीक्यू नेम इज again it is not discussed in any other subject, but again questions have been asked. Which of the following substance control the prolactin? That is by dopamine. लो भैया एमसीक्यू हाईलाइट करो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो, अगर इंक्रीज प्रोलैक्टिन अगर डिक्रीज प्रोलैक्टिन, बोथ ऑफ द एक्टिविटीज गेम प्लेड बाय डोपामाइन. अब मैं किया डोपामाइन का रिसेप्टर को बंद कर दिया, मतलब डोपामाइन एक्टिविटी को कम करवाए. ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा. अब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो ये प्रोलैक्टिन चुप नहीं रहेगा. इट विल गो एंड गिव नेगेटिव फीडबैक किसको देता है? टू hypothalamus. Negative feedback to hypothalamus. Again this is MCQ. Prolactin will give negative feedback to pituitary or hypothalamus. कंफ्यूज मत होना, लाइफ टाइम के लिए याद रखना. हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो इमीडिएटली हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देके इट विल inhibit somebody. Who is that it is going to inhibit? That is it will inhibit HPO axis. If it will inhibit the HPO axis, अगर मान के चलते हैं, डॉक्टर साहब सुन लीजिए मेरा बात है, HPO axis को बंद कर दिया तो that will immediately lead to amenorrhea. तो आप लोग सोचे होंगे, अरे कुछ भी करूंगा, वॉमिटिंग के लिए मैं इलाज कर रहा हूँ, तो क्या ही हो जाएगा भैया. अगर बिना नॉलेज के अगर गलती से ड्रग प्रिस्क्राइब करोगे, तुम्हारा पेशेंट कैन वाउंड अप इनटू अमेनोरिया. ना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लेट मी कंक्लूड एवरीथिंग. व्हाट इज दैट? वी हैव अ ड्रग, डोपामाइन एंटागोनिस्ट, दैट इज कॉल्ड मेटाक्लोप्रामाइड. Once we give the metaclopramide, it will cross the blood-brain barrier. Blood-brain barrier पार करते ही it will block the D2 receptor. D2 receptor block करने के वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ता है. There will be increase of prolactin, because of which negative feedback to hypothalamus, because of which HPO axis inhibits. That will lead to amenorrhea. So that is why this prolactin drug is absolutely contraindicated in which group of people? In the people who are 2 years, है ना. अरे गलती से भी 2 ईयर वालों को मत बोलना. किसको नहीं देना चाहिए? किसको पीरियड्स हो रहा है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स बंद हो जाएगा. दैट मीन्स इन ए reproductive female never give metaclopramide for a long period of time. So don't give it in a reproductive female. So reproductive female के अंदर try to avoid. अगर कोई reproductive female आई है, उनको अगर ये हो रहा है, क्या हो रहा है, vomiting हो रहा है, please avoid one drug that is called as your, what is that? That's a metaclopramide. Very good, proud of you people. आप लोग बड़े शानदार से सुन लिया अभी तक. आगे जाके पढ़ाता हूँ next important drug. तो we learnt about one drug with one MCQ. The MCQ was completely here only, right here. What is that? That is the place is about this one, that is blocking of the drug. Which is that? Blocking of the receptor. That the receptor is your dopamine receptor and leading to elevated production of the prolactin. Lovely. Let's continue. Now we are done with that. Let's get to the next drug. दूसरा ड्रग है जो अच्छा से ड्रग है, सेफ ड्रग है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है. दैट इज ओनली कॉल्ड एज डॉमपेरिडॉन. कौन है? डॉमपेरिडॉन. सो डॉमपेरिडॉन, एक बात याद रखो, नो क्रॉसिंग ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर
इफ देयर इज नो क्रॉसिंग ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर तो इट इज सेफर टू यूज। ठीक है, डोपामाइन के अलावा और क्या ड्रग्स हो सकता है? डोपामाइन रिसेप्टर के अलावा डॉक्टर साहब वी हैड वन मोर इंपॉर्टेंट ड्रग्स, व्हाट इज दैट? दैट इज योर 5-HT3। 5-HT3 क्या था? 5-HT3 आता सेरोटोनिन रिसेप्टर। अब हम लोग क्या करेंगे? सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? 5-HT3 एंटागोनिस्ट। कौन है? 5-HT3 antagonist. Let's learn about the 5-HT3 antagonist. So when I want you to learn about the 5-HT3 antagonist, my dear students, I want you people to understand the drugs. The drug is ondansetron. What is that? Ondansetron. What is that? Ondansetron. Ondansetron के अलावा we have another drugs such as palanositron. क्या है? Palanositron. कौन है? Palanositron. Ondansetron, palanositron. So all these cetron drug जितने भी है, they are your 5-HT3 antagonists. तो MCQ क्या है? MCQ is that these 5-HT3 antagonists are the best drugs. Are the best drugs for chemo-induced vomiting. For what is that? Chemo-induced. कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए बेस्ट ड्रग कौन है? कीमो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए बेस्ट ड्रग इज योर वेरी गुड, द आंसर इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट के अलावा लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स व्हिच आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज दैट गाइस, सो प्लीज लिसन टू मी दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस दे आर योर 5-HT4। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कंफ्यूज भी होने लगेगा, सो ध्यान से सुनिए। 5-HT4 एगोनिस्ट। कौन है? एगोनिस्ट मतलब दीज आर द ड्रग्स जो क्या करता है? 5-HT4 रिसेप्टर को, 5-HT4 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। दीज आर द ड्रग्स व्हिच विल एक्टिवेट 5-HT4 receptor. So if these are the drugs which are activating the 5-HT4 receptors, basically simple सी रूल है, 5-HT4 रिसेप्टर को एक्टिवेट करो, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? डिक्रीज द वॉमिटिंग। इतना ही बात है। ठीक है, तो मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि सीधे लॉजिक है, सीधे डायरेक्ट एक्शन है भैया, रटने वाली बात है। एग्जामिनर तुम्हें ट्रैप ही नहीं बनाएगा, तो ट्रैप बनाएगा तो क्या बनाएगा? So which one will be the trap for you people? The trap for you people will be name of the drug. Names are very important and very easy to remember. The drug name are cisapride. What is that? Cisapride. We have another drug such as musapride. Cisapride. We have another drug such as musapride. कौन है? musapride. So all the pride containing, नाम के अंदर अगर pride है भैया वो कौन है? 5-HT4 ड्रग है। कौन है? 5-HT4 ड्रग है। बस मेरा इतना रिक्वेस्ट है, 5-HT3 कौन होता है? एंटागोनिस्ट होती है, याद रखो। 5-HT4 कौन होता है? एगोनिस्ट। ठीक है, वेरी नाइस गाइस। इतना पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दीज टू ड्रग्स दे माइट बी आस्क्ड फॉर यू पीपल इन द अपकमिंग एग्जाम, सो बी वेरी केयरफुल। ये बहुत लोग क्या करते हैं, अरे नया ड्रग है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेंगे, सुन लीजिए। वी हैव ए ड्रग कॉल्ड एज लार्कोसिरिन। कौन है? लार्कोसिरिन। कौन है? लार्कोसिरिन। एक ड्रग, व्हाट इज देयर? देयर इज ए ड्रग कॉल्ड एज लार्कोसिरिन। देयर इज ए ड्रग कॉल्ड एज पिलबैंसिरिन। ठीक है, सो लार्कोसिरिन इज ए अप्रूव्ड ड्रग, रिसेंटली अप्रूव्ड, is a approved drug for obesity. Approved drug for obesity. Obesity के लिए डॉक्टर साहब what is that? Obesity के लिए approved drug है, that is your what is that? Larcosirin. Then we have pimavanserin. Pimavanserin is a drug which is approved for the treatment of loss of libido. For the treatment of लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो दो बार बोलने के बाद, आफ्टर मी टेलिंग लॉस ऑफ लिबिडो 2 times, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी थिंकिंग अच्छा वायग्रा का रिप्लेसमेंट आ गया क्या? नो नो नो, कम बैक वेयर? यहाँ पे लेक्चर के अंदर सुनो, लॉस ऑफ लिबिडो इन फीमेल, इन विच टाइप ऑफ फीमेल? इन विच टाइप ऑफ फीमेल? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज प्रीमेनोपॉजल। प्रीमेनोपॉजल फीमेल के अंदर अगर लिबिडो लॉस है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम ड्रग यूज कर सकते हैं
पिलबैंसेरिन, ठीक है। तो दिस इज द ड्रग विच इज देयर रिसेंट टाइम्स के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए वन क्लासिक एमसीक्यू, ठीक है, क्लासिक एमसीक्यू। तो आज के अंदर एक एमसीक्यू हो गया, यहाँ पे एक एमसीक्यू, एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट अमीनोरिया रिलेटेड वन एमसीक्यू, एंड आई ऑलरेडी टॉट यू पीपल डोपामाइन का काम कैसे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो वंस वी आर डन विद दिस मच, वंस वी आर डन विद दिस मच, वी आर डन विद द ड्रग्स विच आर मेजरली यूज्ड फॉर वॉमिटिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू टीच यू पीपल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो दैट इज योर गाइस, लिसन टू मी, वी हैव ए ड्रग कॉल्ड एज डॉक्सिलामाइन। कौन है? डॉक्सिलामाइन। We have a drug called as doxylamine. ये doxylamine का कहानी क्या है? Doxylamine is a drug which will cross blood-brain barrier. Which will cross blood-brain barrier. अब blood-brain barrier को पार करके it will go and block. It will go and block. Which receptor? Histamine receptor. Which histamine receptor? H1 receptor. पूरा सुनो. Doxylamine is a drug which will block which receptor? Histamine receptor. Apart from the histamine receptor, slightly it will also block M receptor. मतलब we have a drug, the name of the drug is called as doxylamine. This doxylamine cross the blood brain barrier. Yes, it will slightly inhibit M receptor, but majorly inhibit which receptor? Majorly inhibit the histamine receptor. That is why we are going to call this drug as antihistamine drug. ये कौन है? एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। देखो एंटी हिस्टामाइन ड्रग को मैं काम पे लेके आ गया, जीएटी में लेके आ गया। आप तो एंटी हिस्टामाइन ड्रग सीएनएस में पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डॉक्सिलामाइन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच कंडीशन? फॉर मॉर्निंग सिकनेस। Morning sickness. So if we are talking about morning sickness in a female pregnancy, so उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए बच्चे? That will be doxylamine. आंसर कर लोगे? पक्का कर लोगे? 100% श्योर शॉट है भाई। एमसीक्यू गारंटी है, गारंटी एमसीक्यू को छोड़ना नहीं है। डॉक्सिलामाइन कौन है? डॉक्सिलामाइन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट यू पीपल टू इंट्रोड्यूस इनटू सम ऑफ द अदर ड्रग्स। क्या अदर ड्रग्स? हर साल फार्मा के अंदर 2 या 3 ड्रग होते हैं। सारे बच्चे बाहर आके, अरे मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार ड्रग, अच्छा ऐसा ग्रुप भी होता है क्या? और कई लोग हैं, देयर आर अदर ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा एक क्वेश्चन था, बस दिस क्वेश्चन देयर एंड अदर गाय विल कम एंड टेल, हाँ ये ड्रग दिए थे। हाँ ये ड्रग भी दिए थे क्या पेपर पे? उतना डरने का जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स विच आर आस्क्ड फॉर एमसीए एग्जाम आर द वंस विच आर बेसिक ड्रग्स, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग उसको लेके नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, दैट इज योर NK1 inhibitor. We have a drugs called as NK1 inhibitor. NK1 inhibitor. NK1 inhibitor, the name of the drug is called as aprepitant. कौन है? aprepitant. aprepitant के अलावा we have one more drug that is only called as fosaprepitant. What is that? fosaprepitant. ठीक है। अगर आपको पूछा गया, आपको ऐसा पूछा गया, a 72-year-old male with lung cancer undergoing chemotherapy, which is the best anti-emetic। तो आप लोग ऑलरेडी आंसर करने लगोगे क्या? 5-HT3 agonist। अब ऑप्शन दिया गया ऐसे, ऑप्शन ए मेटाक्लोप्रामाइड, ऑप्शन ए मेटाक्लोप्रामाइड, ठीक है। ऑप्शन बी ऑलरेडी बहुत लोग चिल्ला रहे होंगे, अरे वन सेकंड हटना, आगे बढ़ो। नहीं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द थिंग दे आर गिवन इज
डॉक्सिलामाइन, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी योर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ड्रग, एप्रिप्टेंट, ऑप्शन डी विल बी ऑल above. So most of you people comment the answer, be it a recording lecture, फिर भी मुझे कमेंट में चाहिए आंसर। मोस्ट ऑफ यू पीपल थिंक वाटर। अभी आपका आंसर करने के लिए 2 सेकंड टाइम भी देता हूं, ठीक है। सोचो, हाँ जी भैया, सोचो। यस यस माय डियर ब्रिलियंट डॉक्टर्स, थिंक। सो द आंसर इज, यू नीड टू मार्क इट एज एप्रिप्टेंट। अब आप मेरे साथ आर्ग्यूमेंट पे मत आइए क्वेश्चन गलत है करके। क्वेश्चन इज करेक्ट in the given option. That's all. In the given option, second best drug for what is that? For the treatment of chemo-induced vomiting. Second best drug for the chemo-induced vomiting will be NK1. ठीक है। So NK1 कहाँ से आता है, ये भी क्वेश्चन है। NK1 कहाँ से आता है? NK1 is released ड्यूरिंग पेन। NK1 कब आता है? NK1 आता है रिलीज ड्यूरिंग द पेन, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब आगे बढ़ते GIT के अंदर। GIT के अंदर तो इतना तो पढ़ लिए, तो नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द GIT। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द GIT कौन सी? तो आप लोगों को फार्मा पढ़ के बोर हो गया ना, तो थोड़ा बहुत कुछ और पढ़ लेते है ना, थोड़ा सर्जरी की तरफ चल लेते हैं, ठीक है। ठीक, चलो फिर तो क्या पढ़ना चाहिए हम लोग? अपन लोगों को हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर कॉल्ड एज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता क्या? दिस ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज ए इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर। बहुत लोग बोलते हैं सर हाइपरगैस्ट्रेमिया, सर हाइपरगैस्ट्रेमिया। ऐसा नहीं होता है, ये रटवाया हुआ चीज। आई एग्री विथ यू पीपल, जितने तक रटना है उधर तक ही। अब हम मेहनत किस लिए लगा रहा है? टू अंडरस्टैंड एंड टू क्रैक द क्वेश्चन इन एनी पर्टिकुलर मैनर। कोई भी तरीके में दिए उसको क्रैक करने का हमारा तरीका है, तो सीखना भी वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। सो दिस ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का कॉज क्या होता है? कॉज एंड साथ में हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, उसके बाद जाएंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के ऊपर। सो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। गाइस ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का कॉज एंड पैथोजेनेसिस। कॉज क्या होता है? इट इज ड्यू टू ए गैस्ट्रिनोमा। इट इज ड्यू टू व्हाट? ए गैस्ट्रिनोमा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस गैस्ट्रिनोमा? गैस्ट्रिनोमा इज ए ट्यूमर। गैस्ट्रिनोमा इज ए ट्यूमर। ए ट्यूमर क्या करता है? प्रोड्यूस। गैस्ट्रिनोमा इज ए ट्यूमर विच प्रोड्यूस गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिनोमा इज ए ट्यूमर विच प्रोड्यूस गैस्ट्रिन। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? गैस्ट्रिन इज ए हार्मोन। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? गैस्ट्रिन इज ए हार्मोन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो देयर इज ए गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रिनोमा आ रहा है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका साइट, द साइट यूजुअली इट अराइज फ्रॉम ए एरिया कॉल्ड एज गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल। गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल। सो गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल का बॉर्डर्स आर लिटिल बिट, मतलब इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो ट्रायंगल का बॉर्डर याद मत रख, ठीक है। तो बट याद रखना गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल से आता है गैस्ट्रिनोमा। तो अब गैस्ट्रिनोमा के वजह से क्या हुआ? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो गया। अगर गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो गए तो होने देना, पर उससे क्या हो रहा है? सो गैस्ट्रिन विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ द गैस्ट्रिन विच इज प्रोड्यूस्ड विल गो एंड स्टिमुलेट पैराइटल सेल। विल गो एंड स्टिमुलेट पैराइटल सेल। अगर पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा तो इट विल लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड एज हाइपरक्लोरोहाइड्रिया। हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, व्हाट इज दिस कंडीशन? हाइपरक्लोरोहाइड्रिया ना, आप लोगों को पूरा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डराना है ना, हाइपरक्लोरोहाइड्रिया बोल देना, डर जाएगा। अरे भाई साहब क्या है? अरे कुछ नहीं है, हाइपरक्लोरोहाइड्रिया इज नथिंग बट इंक्रीज्ड एसिड इन द स्टोमक। अगर स्टोमक के अंदर एसिड बढ़ा हुआ है उसी को बोलते हो हाइपरक्लोरोहाइड्रिया। इफ देयर इज अ हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, इफ देयर इज अ एलिवेटेड एसिड, अगर एसिड स्टोमक के अंदर बढ़ेगा तो अल्सर कहां आएगा? ऑलरेडी आई टॉट टू यू पीपल इन द लेक्चर नंबर 2, यू पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट। इट विल लीड टू अल्सर। ये कौन सी अल्सर? एसिड की वजह से हुआ है, पेप्टिक अल्सर।
peptic ulcer. So a patient with peptic ulcer and as well as peptic ulcer and as well as what is that, that is your gastrinoma, then the diagnosis would be called as Zollinger-Ellison syndrome. पर हम लोगों को ऐसा थोड़ा ना आता है, पेशेंट आके बोलेगा सर जी मेरा पेट में गैस्ट्रिनोमा है निकाल दो, ऐसा थोड़ी बोले नहीं ना, तो क्या बोलेगा वो भी देखना पड़ेगा. सो लेट्स लर्न अबाउट इट. ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. द डायग्नोसिस. So diagnosis, guys, I want you people to understand. You can easily go and check for serum gastrin level. Serum gastrin level. Serum gastrin level. Serum gastrin level के अलावा we can do other test. We can do other test. अदर टेस्ट का नाम बता देता हूँ. सीरम गैस्ट्रिन टेस्ट के अंदर डायरेक्टली सीरम गैस्ट्रिन का लेवल नापो, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप लोग सोच सकते हो ये गैस्ट्रिनोमा हो सकता है, पॉसिबल लेकर के सोच सकते हो. उसको कंफर्म करने के लिए अदर टेक्निक्स भी है, आई टेल यू पीपल. इसके अलावा अदर टेस्ट व्हाट वी कैन डू, दैट वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज द पेंटागैस्ट्रिन टेस्ट. पेंटागैस्ट्रिन टेस्ट. Pentagastrin test के अलावा we have other test. What is that? The name of the test, one of the most important test, that will be pentagastrin के अलावा you have something called as secretin provocation test. Secretin provocation test. क्या करोगे? Secretin provocation test. Secretin provocation test के अलावा you can do another thing, that is radiological टेक्निक का, दैट इज न्यूक्लियर स्कैन. कौन से कर सकते हो? न्यूक्लियर स्कैन. अब ये न्यूक्लियर स्कैन होता क्या है? न्यूक्लियर स्कैन के लिए वी यूज अ ड्रग, मतलब एक ड्रग का मदद के साथ करोगे न्यूक्लियर स्कैन, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन. उसी को बोलते हो ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन. ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन कीजिए भैया. ऑक्ट्रियोटाइड स्कैन में आपको पता चल जाएगा. ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट विल बी कॉल्ड एज अग्रेसिव पीपीए. अग्रेसिव पीपीए. अब आधे लोग क्या करेंगे? अग्रेसिव पीपीए बोलते पेशेंट को दो थप्पड़ ऐसे मार के खा ले पीपीए, ऐसा मार के पूरा अग्रेसिव से पीपीआई दोगे कि नहीं? वी नीड टू गिव ए लार्ज डोसेस ऑफ पीपीआई. ठीक है, अग्रेसिव पीपीआई लिख का बोल के पेशेंट के ऊपर गुस्सा करके लो थप्पड़ मार के दिया मैंने पीपीआई, वो नहीं होता भैया. अग्रेसिव पीपीआई ट्रीटमेंट इज नथिंग बट यू नीड टू गिव ए लार्ज डोसेस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. पीपीआई दे दिया. पीपीआई के अलावा ऑल्सो यू नीड टू डू सर्जरी. व्हाट इज दैट? द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द surgical removal of the tumor. ठीक है, this is the story of your, what is that? Story of your most important aspect, surgical removal of the tumor. surgical removal of the tumor करने के लिए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? that will be, आप लोगों को कंफर्म करना चाहिए, that is Zollinger-Ellison syndrome है करके. ठीक है, so ये हो गया तुम्हारा important aspects which are related to stomach and TOP. ठीक है, अब आप लोगों को डॉक्टर साहब आगे जाके क्या देखना पड़ेगा? सो आई विल टीच यू पीपल सम इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज. वो इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज कैसी वाली चीजें होंगे? तो इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज रिलेटेड टू लिटिल बिट अबाउट इसोफेगस. कल ओरल कैविटी पढ़ा दिया था, गर्ड पढ़ा दिया था. Esophagus के अंदर there are one more small, see I have kept all the small pathologies to the other side. ठीक है, देखो एंटीएमेटिक्स पढ़ाया, एंटासिड्स पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा दिया. अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसोफेगस के इंपॉर्टेंट मैसिव टॉपिक भी पढ़ाया, छोटे टॉपिक्स भी पढ़ा रहा हूँ. तो अब देख लो इसोफेगस के अंदर स्मॉल टॉपिक. व्हाट इज दैट स्मॉल टॉपिक? द स्मॉल टॉपिक व्हिच आई वांट टू टीच यू पीपल इज esophageal atresia. What is that? Esophageal atresia. When we are talking about esophageal atresia, डॉक्टर साहब पहली चीज atresia का मतलब पढ़ो. हम लोग पढ़ते हैं क्या? atresia का मतलब. What is the meaning of atresia? Atresia is nothing but absence of segment. अब आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा. सर एब्सेंस ऑफ सेगमेंट मतलब क्या? इसके अंदर इसोफेगस गायब हो जाता है क्या? हाँ जी बिल्कुल गायब हो जाता है. हाँ जी बिल्कुल गायब होता है. तो बिल्कुल पूरा इसोफेगस नहीं है, एक पार्ट ऑफ द इसोफेगस गायब होता है. तो हम लोगों को एक चीज देखो, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन? इट इज ए कंजेनिटल कंडीशन. इट इज ए कंजेनिटल कंडीशन.
ठीक है, अब कंजेनिटल कंडीशन, अब कंजेनिटल कंडीशन के अंदर भी व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज, कॉज इज, अब नाम सुन के डरो मत, by listening to the name don't get scared, I will make it easier for you after the class is done, आप लोग भूलने का चांस ही नहीं हो सकता, ठीक है। listen to me, cause is because of posterior, because of what, posterior deviation, posterior deviation of esophageal septum, tracheoesophageal septum. So when we are talking about the posterior deviation of the tracheoesophageal septum, बहुत लोगों को क्या हो गया सर, कंफ्यूजन, डोंट वरी, तो वो कंफ्यूजन को हटाते हैं। तो पहली चीज मैं क्या बोला था, एक सेप्टम बोला था, मैं क्या बोला था, एक सेप्टम बोला था। अब मान के चलते वो सेप्टम यहाँ पे, सेप्टम मीन्स व्हाट, सेप्टम इज एनीथिंग विच इज डिवाइडिंग टू स्ट्रक्चर। अब मान के चलो the baby is in the state of embryo, means baby is in the mother's womb, baby is still being developed. Now in this case esophagus is being developed from the top to down like this, and another part of the esophagus is being developed from down to up like this, ठीक है। एक पार्ट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर डेवलप हो रहा है, एक पार्ट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सेप्टम के पीछे क्या है, पीछे के तरफ में देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज योर ट्रेकिया, कौन है, ट्रेकिया है, ठीक है। तो ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया भी बन रहा है यहाँ पे पीछे के तरफ, और आगे सॉरी आगे के तरफ ट्रेकिया बन रहा है सेप्टम का पीछे तरफ कौन बन रहा है, इसोफेगस बन रहा है। अब क्या हो जाएगा, दिस सेप्टम विल डिविएट टू द पोस्टीरियर, सेप्टम डिविएट हो जाएगा पोस्टीरियर साइड में, तो क्या होगा, सेप्टम ऐसा डिविएट हो जाएगा, सेप्टम ऐसा डिविएट हो जाएगा, ऐसा डिविएट हो जाएगा, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, देखो इसोफेगस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, इसोफेगस पूरा बनेगा नहीं, एंड सामने ट्रेकिया तो ऐसा रह जाएगा, सामने ट्रेकिया ऐसा रह जाएगा। अब सामने ट्रेकिया ऐसा रह जाएगा, तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड सम केसेस व्हाट हैपेंस इज दैट अभी दिस पार्ट ऑफ द इसोफेगस विल स्टार्ट टू कनेक्ट विथ द ट्रेकिया, ये upper part of the esophagus will start to connect with the trachea. So this one would be called as most common type. This is the most common type. मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब पूरा सुन लीजिए, नीचे पार्ट भी कनेक्ट हो सकता है, दोनों कनेक्ट हो सकता है, कनेक्शन नहीं हो सकता है, देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज, बट अमंग दैट एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू सिंपल है भाई। मोस्ट कॉमन टाइप कौन, मोस्ट कॉमन टाइप तो ये वाली का नाम क्या दिया, टाइप सी, इसका नाम क्या बोलते हो, टाइप सी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, सी लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो ऐसे ही सी इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो वी स्टडीड अबाउट दिस नाउ। ये बच्चे को तो ऐसा हो गया यार, बच्चे को ऐसा हो गया तो बच्चे थोड़े आके बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे इसोफेजियल फिस्टुला हो गया, ऐसा थोड़ा ना बोलेगा। तो यू नीड टू फाइंड आउट बीइंग ए डॉक्टर। अब यू नीड टू फाइंड आउट बीइंग ए डॉक्टर, आप लोगों का सोच है अरे ये मेरा काम थोड़ी है, पीडियाट्रिशियन देख लेंगे, मुझे पीडियाट्रिशियन बनना ही नहीं। भैया पीडियाट्रिशियन के पास जाने से पहले बीइंग ए एमबीबीएस डॉक्टर और बीइंग ए इंटर्न आप लोगों को ये केस को डील करना पड़ेगा इनिशियल स्टेबलाइजेशन। क्यों इनिशियल स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ केसेस कैन बी डायग्नोस्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो डिलीवरी रूम में हो या नहीं तो पीडियाट्रिक रोटेशंस में हो आप, ऑल दिस टाइम्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और एक क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा। तो आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्लिनिकल फीचर्स। व्हाट इज दैट, क्लिनिकल फीचर। सो द क्लिनिकल फीचर इज वेरी सिंपल। तो डॉक्टर साहब वेरी इजीली लिसन टू मी, लुक एट दिस पिक्चर। तो बेबी विल स्टार्ट टू swallow the saliva. Any human being after the birth, slowly he will start to swallow the saliva. Now saliva will come into this pouch, ठीक है। A little bit of saliva will go into the will go into where, will go into the trachea, but most of the saliva will start to come back. तो saliva क्या हो जाएगा, वापस आने लगेगा, saliva वापस आने लगेगा, saliva will start to come back. That is only called as regurgitation. That is only regurgitation.
Now regurgitation and most importantly I want you people to remember that is अब regurgitation के साथ साथ जितने भी सलाइवा जा रहा है वापस आया जा रहा है, तो the most important word you need to be looking for is that is only continuous pouring of saliva. Continuous pouring of saliva. So when I'm talking about continuous pouring of saliva, अगर ये point, if this point has been mentioned inside your question, directly mark the answer as what is that? Tracheoesophageal fistula and tracheoesophageal fistula with the esophageal atresia. And if they are talking even more, the cause might be asked. तो मुझे जो लग रहा है इस बार MCQ के अंदर पूछा जाएगा cause of the tracheoesophageal fistula. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. So when there is this type of condition, अपन को कैसा डील करनी चाहिए? डील करने का थिंग इज दैट इनिशियली आप लोगों को ये तो हो गया, ठीक है. इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, कोई भी बेबी थोड़ा बहुत मतलब वॉमिट कर लिया, एनी बेबी वॉमिट्स अ लिटिल बिट और एनी बेबी लेट्स अ लिटिल बिट ऑफ सलाइवा टू कम आउट, यू विल टेल ट्रेकेसोफेजियल फिस्टुला और व्हाट? नो, यू कैन नॉट टेल. तो आप लोगों को यू नीड टू असेस द इनिशियली, मतलब इनिशियली यू नीड टू डू सम प्रोसीजर्स जिसको देख के आपको पता चलना चाहिए. By looking at these things, you should be able to understand if the baby might be having what is that? Tracheoesophageal fistula and esophageal atresia. To understand that, the first step I want you people to do is that this one. Pass a NG tube. Pass a NG tube. Pass a NG tube. अब I can understand. बहुत सारे FM जिसको प्रॉब्लम है, सर NG ट्यूब होता क्या? कोई शर्माने का जरूरत नहीं है. Not everybody knew everything at the time of the birth, okay? So it is absolutely fine. NG tube is a tube. It is a tube which will be used to pass from your nose and all the way into your esophagus and into the stomach. Normal human being के अंदर, in a normal human being, esophagus is open. When you pass a tube will all the way enter into the stomach. But in this case, esophagus is having what? Atresia. तो what will happen? तुम्हारा पाइप आएगा, कौन सी? एनजी ट्यूब आएगा. एनजी ट्यूब को आपने पास किया था, एनजी ट्यूब आएगा, आके यहाँ पे ऐसा कॉइल हो जाएगा. इफ यू फाइंड कॉइलिंग ऑफ द एनजी ट्यूब, तो एनजी ट्यूब पास द एनजी ट्यूब को पास करोगे तो विल इट सक्सेसफुल और फेल? इट विल फेल. एंड अगर इफ यू डू पास है एनजी ट्यूब करके, सर एनजी ट्यूब पास ही नहीं हो रहा है, एक बार एक्सरे करके देखते. एक्सरे करके अंदर देखोगे, एक्सरे के अंदर आपको क्या दिखेगा? कॉइलिंग दिखेगा. कॉइलिंग ऑफ व्हाट? कॉइलिंग ऑफ वेरी गुड, एनजी ट्यूब. कॉइलिंग ऑफ एनजी ट्यूब. तो एनजी ट्यूब का कॉइलिंग आपको दिख जाएगा. सो वंस यू फाइंड द कॉइलिंग ऑफ द एनजी ट्यूब, तो आप लोगों को पता चलनी चाहिए व्हाट इज दैट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पर्सन इज हैविंग व्हाट इज दैट डॉक्टर? दैट इज माइट बी ए इसोफेजियल अट्रेसिया. अब इसोफेजियल अट्रेसिया के लिए इनिशियल ट्रीटमेंट तो कर लिए, इनिशियल एवेल्युएशन के अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. गाइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आई विल टीच यू पीपल. आई विल टेक ए सेपरेट क्लास, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मेड इजी. इफ यू follow this series continuously, month end तक follow करो. Investigation of choice made easy, antidote made easy, and there is one more special class. That special class will be, I will not disclose the name of it. There are two special classes which will give you, सिर्फ ये 4 क्लासों के अंदर से, which will give you at least 10 to 12 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. आप पढ़े होंगे फिर भी कंफ्यूज हो रहा होगा, वो सारे चीज क्लियर करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा. बट आई वांट यू पीपल टू फॉलो द कंप्लीट सेशन रोज. एंड रोज पढ़ने से तो आपको तो लॉस तो नहीं हो रहा है ना. चलो लेट्स कंटिन्यू. आईओसी इज दैट वी यूज यूजुअली कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन. सीईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. Very nice. Let's continue to the next aspect. What is that next aspect which I want to tell you people? The next important aspect is that treatment for the tracheoesophageal fistula. Treatment will be always surgical treatment. Always surgical treatment. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सर्जिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब देखो, इसके अंदर there are step by step procedure, but for a MCI approaching student, सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपका टारगेट क्या है? दो ब्लाइंड एंड ऑफ द इसोफेगस है ना, दोनों को एक साथ जोड़ देना चाहिए. दोनों को एक साथ
जोड़ देना चाहिए, उसको ही बोलते हो इसोफेगो, इसोफेगो, इसोफेगोस्टोमी, esophagostomy. So this is the story of your esophagostomy. This is the story of your, what is that? Esophagostomy. So this is the surgical treatment what we are going to give for a पेशेंट. सो दिस वन देखो, आप लोगों को बहुत सारे है इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप होती है. वी लुक फॉर द लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा है तो पहले मायोटोमी करके वेट करेंगे, देन वी विल गो फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर. अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो डायरेक्टली इसोफेगोस्टोमी ट्राई कर सकते हैं. ऑल दिस आर देयर, बट ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है. यूजुअली आप लोगों को पूछा जाता है प्रोसीजर. सो आई वांट यू पीपल टू फोकस ऑन दिस. गॉट इट? वेरी नाइस. चलो let's continue doctors. So once we are done with this one, I want you people to understand, एक पॉइंट को मैं पर्पसफुली लास्ट के लिए रखा था. A1, what exactly is this? Doctors, this one is very important. ये MCQ नहीं आएगा. This point will help you solve many MCQs, as many MCQs as possible. ये बॉक्स को ना मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया. ये बॉक्स को क्या करूंगा, दो हिस्सों में डिवाइड. सो फर्स्ट हिस्से में लिखूंगा तो दोनों को ऊपर लिखूंगा कंजेनिटल एनामलीज, कंजेनिटल एनामलीज. कंजेनिटल एनामलीज के अंदर आप लोगों को तो सुन लीजिए यहां पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनामलीज, जीआईटी एनामलीज, जीआईटी एनामलीज. उससे क्या होता है ये भी सुन लीजिए. दूसरी वाली रीनल एनामलीज, रीनल एनामलीज, रीनल एनामलीज. डॉक्टर साहब सुन लीजिए, रीनल एनामली है अगर मतलब बेबी के अंदर, फॉर एग्जांपल रीनल एनामलीज सच एज रीनल एजेनेसिस, रीनल एजेनेसिस. okay, apart from that there are some other conditions such as if the baby is having a posterior urethral valve. okay, now GIT anomalies such as esophageal atresia, esophageal atresia. okay, अगर for example duodenal atresia, duodenal atresia. so in these type of conditions, so in both of these things I want to tell you people earliest sign. what is that? earliest sign seen, earliest sign during pregnancy, earliest sign during pregnancy. प्रेगनेंसी का टाइम पे अर्लीस्ट साइन कौन सी दिखती है? तो अर्लीस्ट साइन इन द जीआई एनोमलीज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज पॉलीहाइड्रोएम्नियोस. क्या मिलेगा बच्चों? रिपीट करो लाउडली, पॉलीहाइड्रोएम्नियोस, पॉलीहाइड्रोएम्नियोस. रीनल एजेनेसिस और रीनल एनोमलीज में क्या मिलेगा आपको? ऑलिगोहाइड्रोएम्नियोस. why it will occur, this is a complete different subject theory which we don't have time to discuss क्योंकि हमारा GIT आगे पढ़ने का है. तो आप लोगों को याद रखने का टेक्निक तो दे दिया. MCQ के अंदर आपको दिया गया कि मदर हैड ए हिस्ट्री ऑफ ऑलिगोहाइड्रोएम्नियोस. थिंक या रीनल एनोमली हो सकता है, रीनल एजेनेसिस हो सकता है, या नहीं तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो सकता है. ये दोनों को रूल आउट करके आगे बढ़ो ना, है कि नहीं? तो ये ऑलिगोहाइड्रोएम्नियोस एंड पॉलीहाइड्रोएम्नियोस, ये दोनों को कैसा डायग्नोस करते हैं? हाउ डू यू डायग्नोस ऑलिगोहाइड्रोएम्नियोस and polyhydramnios? that is basically amniotic fluid. amniotic fluid को कैसा देखा जाएगा? amniotic fluid को देखने के लिए we use something called as amniotic fluid index. this is the best method which we use today. एक भी बोलते हो amniotic fluid index. it is calculated with the help of ultrasound. ये भी याद रखा करो, ये भी MCQ में गए नहीं सकते. ठीक है? so far what we did is we studied about esophageal atresia, we studied about esophagus anatomy, we studied about all these things. Very nice. Now apart from this, I want to teach you the next important anomaly. what is that? The most important thing that is only called as, guys, please listen to me, that is called as esophageal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, esophageal perforation. what is that? esophageal perforation. so when I'm talking about esophageal perforation का मतलब क्या होता है?
इसोफेगस के अंदर क्या हो गया, देयर इज ए होल, देयर इज ए breach inside the esophagus. So first and most important thing, causes. Causes. The first cause is iatrogenic. Iatrogenic. Oh my God, iatrogenic मतलब क्या है? डॉक्टर ने esophagus को perforate कर दिया. If doctor has perforated the esophagus, then we are going to call it as iatrogenic perforation. Iatrogenic perforation क्यों होता है? Because of instrumentation. Because of what? Instrumentation. अब सर इंस्ट्रूमेंट डालने से क्यों होल बनेगा? मेरा भाइयों पूरा सुनो, अगर तुम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, वो एंडोस्कोपी करने के लिए भेज दिए, तो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ व्हाट? परफोरेशन. हाई रिस्क ऑफ व्हाट? परफोरेशन. अगर अर्लियर टाइम में, पुराने टाइम में ना क्या होता था, आज के टाइम पे ना एंडोस्कोप एक वायर की जैसी पूरा ऐसा जैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल होती है. आज के टाइम पे क्या बोलते हो? फाइब्रोगैस्ट्रोस्कोपी बोलते हो उसको. फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी को ही बोलते हो फाइब्रोगैस्ट्रोस्कोपी, ठीक है. बट पुराने टाइम्स में कहानी क्या होता था पता है? ऐसा सॉलिड, ए पेन जैसा सॉलिड मटेरियल होता था. ये सॉलिड मटेरियल को टेक्निक के थ्रू इंसर्ट करके चेक करते थे एंडोस्कोप, मतलब उसी को बोलते हो रिजिड एंडोस्कोप. पूरा मेटल पाइप से बना हुआ होता है, दैट इज ओनली रिजिड एंडोस्कोप. If there is a rigid endoscope or inexperienced person doing the endoscopy, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? परफोरेट कर सकते हो. चलो परफोरेट कर दिया, तो iatrogenic परफोरेशन का ट्रीटमेंट क्या है? सो iatrogenic परफोरेशन का ट्रीटमेंट सिखाने से पहले सुन लो. सो फॉर एग्जांपल आप लोग एंडोस्कोपी कर रहे हो तो पेशेंट को प्रिपेयर्ड करके रखो. You are not going to just, a patient comes in and you put a endoscope. It's not a procedure like that. Endoscope के लिए प्लान करोगे, पेशेंट को प्रिपेयर करोगे. After being prepared only we are going to do what? Endoscopy. ठीक है. So when we are doing endoscopy, now listen to me. Iatrogenic perforation के अंदर best part is that esophagus है. esophagus के बाद कौन है? स्टोमक. स्टोमक के अंदर लिटरली क्या कहानी है? एम्प्टी है. लिटरली स्टोमक इज व्हाट? एम्प्टी. स्टोमक को क्या हो गया? एम्प्टी. स्टोमक इज व्हाट? एम्प्टी. वेरी गुड. इफ स्टोमक इज एम्प्टी, दैट मीन्स यहां से कुछ आने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं. अब देखो हमारा पेशेंट को क्या हो गया था, सुन लीजिए. यहाँ पे हमारा पेशेंट को, सो लिसन टू मी, आवर पेशेंट हैड होल. आवर पेशेंट हैड व्हाट? होल इन द इसोफेगस. होल किसने बनाए थे? डॉक्टर ने बनाए थे. बट स्टोमक के अंदर क्या है? एम्प्टी है. एम्प्टी है तो कुछ कंटेंट लीक होगा क्या? नहीं होगा. कंटेंट लीक नहीं होगा तो कोई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है क्या? नहीं है. अगर इफ देयर इज नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, नाउ व्हाट वी नीड टू डू? ऑल वी नीड टू डू इज दैट वुंड को हील होने दो. कैसा हील होने दोगे? जस्ट यू आर गोइंग टू पुट ए ट्यूब विच इज बाईपासिंग. एक ट्यूब डाल दो नोज से लेके स्टोमक तक, और वो ट्यूब के थ्रू फीडिंग दे. एनजी ट्यूब डालो, वो ट्यूब के थ्रू क्या करो? फीडिंग दे दो. एंड ऑल यू नीड टू डू इज प्लेस ए एनजी ट्यूब. सो iatrogenic परफोरेशन का ट्रीटमेंट इज व्हाट? एनजी ट्यूब. प्लेस ए एनजी ट्यूब. कितने दिन के लिए एनजी ट्यूब लगाओगे? फॉर 7 days. 7 days के लिए एनजी ट्यूब लगाए. एनजी ट्यूब लगाए तो क्या हो गया? मान के चले इसको ट्यूब बनाते. ये ट्यूब है भाई, ऐसा ट्यूब है. अब ट्यूब के अंदर ये ट्यूब को तुमने पेट तक डाल दिया. अब फूड पूरा कैसा भेजोगे? ट्यूब के जरिए भेजोगे. सो वो ट्यूब के अंदर से खाना चला जाएगा काम पे? स्टोमक में. तो विद वुंड क्या हो गया? पूरा सेफ है. वुंड को इन्फेक्शन हो रहा है क्या? वुंड इन्फेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वट एवर द फूड यू गिव, दैट फूड विल पास थ्रू ओनली ट्यूब एंड दिस वुंड एरिया विल नॉट बी एक्सपोज टू एनी फूड. अगर फूड को एक्सपोज नहीं हुआ, देयर इज नो इन्फेक्शन एंड हीलिंग विल अकर ऑटोमेटिकली. रूल नंबर 1, हीलिंग प्रमोट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. ह्यूमन बॉडी कैन हील इटसेल्फ. ऑल यू नीड टू डू इज दैट सपोर्ट. ठीक है. चलो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट इज, लिसन टू मी, second type of perforation, that is called as spontaneous. What is that? Spontaneous esophageal rupture. Spontaneous esophageal rupture. Spontaneous esophageal rupture होता क्या है? This spontaneous esophageal rupture is also called as Bory-Harvey syndrome.
बोरेहावी। अब ये बोरेहावी सिंड्रोम बहुत लोगों को कंफ्यूजन करता है। एवरी पर्सन एग्जाम के 2 दिन पहले मुझे या मिल के पूछता है या कॉल करके पूछता है या कोई ना कोई क्लास में आके पूछ ही लेता है, सर ये बोरेहावी सिंड्रोम और हमें दूसरी एक चीज है मॉलरीवी स्टेयर, ये दोनों कंफ्यूज करता है, इसको कैसे डील करें? अब डील करते चलो। ये पेशेंट, दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन विथ अल्कोहलिक्स। अब अल्कोहलिक बोलते ही आप लोग क्या करते हो, मॉलरीवी स्टेयर भी तो अल्कोहलिक्स में दिखता है, तुम आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अल्कोहल का डायरेक्ट फैक्टर से ज्यादा इसको पैथोजेनेसिस के अंदर कुछ और है, ठीक है? तो उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 1, ये पेशेंट वॉज बिंज ड्रिंकिंग, ये पेशेंट वॉज बिंज ड्रिंकिंग। पेशेंट क्या कर रहा था? बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग मतलब कंटिन्यूसली सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूसली दारू पीते हुए क्या हुआ? ही वॉमिट्स। इतना वॉमिटिंग होगा कि वेरी वेरी फोर्स वॉमिटिंग, फोर्सफुली भी नहीं, विथ प्रेशर, वॉमिटिंग विथ हाई प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर से वॉमिट करेगा। एट द सेम टाइम वॉमिट एगेनेस्ट, किसका एगेनेस्ट? आप लोग सोच रहे होंगे अरे जिसके साइड में बैठा होगा उसके ऊपर दारू उल्टी कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। एगेनेस्ट क्लोज्ड ग्लॉटिस। अब पूरा सुन लो, पूरा कहानी सुन लो। ऐसा इसोफेगस है, इसोफेगस के ऊपर ग्लॉटिस ऐसा बंद है, बंद हुआ इसोफेगस के साथ में अब पेशेंट को क्या हो गया? वॉमिट आ गया। अब इसोफेगस का ग्लॉटिस क्या है? बंद है। अब ग्लॉटिस बंद है, वॉमिट आएगा तो ऑटोमेटिकली pressure in the esophagus. What is that? Pressure in the esophagus increases. अब pressure in the esophagus अगर increase हो जाएगा automatically it will rupture. अब rupture कहाँ पे होगा? In the weakest part. जो एरिया वीक होगा वो एरिया में rupture हो जाएगा, weakest part. Okay. अगर वीकेस्ट पार्ट में रप्चर हो जाएगा तो अब मेरा बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, इसोफेगस जैसा ये बैठा है ना, इसोफेगस कहां पे होता है पता है? इसोफेगस इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम। एनाटॉमिकली देखो, ये दोनों लंग्स है, लंग्स के बीच में हार्ट है, हार्ट, थाइमस, ऑल दी स्ट्रक्चर्स टुगेदर दे आर लोकेटेड इन ए प्लेस कॉल्ड एज मीडियास्टिनम, ठीक है? अब रप्चर हो जाएगा तो अब इसोफेगस के अंदर क्या हो गया? उल्टी आया, उल्टी काम पे रप्चर हो गया, रप्चर से क्या हो जाएगा? उल्टी पूरा लीक हो जाएगा। नाउ एग्जैक्टली वो पूरा वॉमिट को लोग बोलते हैं कंटेंट्स विल लीक इनटू मीडियास्टिनम। अब मीडियास्टिनम के अंदर क्या हो गया? लीक हो गया। मीडियास्टिनम के अंदर लीक हो गया तो अब आगे क्या होगा? मेरा पूरा बात सुन लीजिए। अगर मीडियास्टिनम के अंदर लीक हो गया तो होने देना, तो मेरा क्या जा रहा है? पेशेंट का क्या जा रहा है? इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो वंस इफ द कंटेंट्स विल लीक इनटू द mediastinum, once what is that? Contents will leak into the mediastinum. Now what is going to happen is a very interesting concept that will lead to inflammation, that will lead to inflammation that lead to what? Inflammation of what? Inflammation of the what is that? That is called as inflammation of the mediastinum. इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम क्या हो जाएगा? इन्फ्लेम हो जाएगा। अगर मीडियास्टिनम इन्फ्लेम हो जाएगा तो पेशेंट का क्लिनिकल फीचर, तो क्लिनिकल फीचर करके यहाँ पे ऐसा लिखेंगे और एक एक क्लिनिकल फीचर को हम लोगों ने पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है तो चेस्ट पेन होगा। क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। सो चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन के अलावा what else will be there to this patient? inflammation के वजह से chest pain के अलावा, apart from the chest pain, the patient will have one of the most important aspect. The patient will have surgical emphysema. What is that? Surgical
emphysema. Along with that, डॉक्टर साहब सुन लो इधर, vomiting against the closed glottis हुआ था, but the patient can have one more thing, that is contents leaked into the mediastinum. Irritation will lead to something called as vomiting. So vomiting, surgical emphysema, chest pain. So these are the important triad. The name of the triad is only called as Mackler's triad. क्या बोलते हैं इसको? Mackler's triad. Vomiting, surgical emphysema, chest pain. These are the ones which are called as Mackler's triad. ठीक है, Mackler's triad हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सो सर्जिकल एम्फिसेमा विल गिव राइज टू सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. ये एमसीक्यूज क्या है? तो देखो यार, मैं ना नॉर्मली बोला होता सर्जिकल एम्फिसेमा विल गिव राइज टू सम अपीयरेंस, बट आप लोगों को क्या है कि एमसीक्यूज करके पढ़ाने से ना तुम्हारा मन भी बने रहेगा, एट द सेम टाइम यू विल फोकस मोर, एंड एट द सेम टाइम आपका वे ऑफ अप्रोच टू द कॉन्सेप्ट बहुत बदल जाएगा. एंड सर्जिकल एम्फिसेमा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है. तो सर्जिकल एम्फिसेमा विल गिव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज ओनली कॉल्ड एज हमान्स क्रंच. ठीक है. अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन शुरू हो, सर पहली बात तो हमें सर्जिकल एम्फिसेमा क्या है पता नहीं, दूसरी मीडियास्टिनाइटिस तो अब थोड़ा बहुत समझ में आया, आगे समझ में नहीं आया. सुनो, बेसिकली हमारा पेशेंट को क्या हो गया, चेस्ट के इनसाइड देयर इज ए परफोरेशन कहाँ पे? इसोफेगस के अंदर उल्टी भी निकल गया, उल्टी के साथ गैस भी निकल गया. अब जो गैस निकल जाएगा, गैस कहाँ जाएगा? इट विल गो अंडर द स्किन. मान के चलो डॉक्टर साहब ये चेस्ट वाले हैं, तो चेस्ट वॉल के पीछे कहीं परफोरेट हो गया तो गैस लीक होके कहाँ आएगा? स्किन के नीचे. सो बिलो द स्किन गैस विल अक्यूमुलेट. सो बेसिकली सबक्यूटेनियस गैस अक्यूमुलेशन इज ए सिंप्लीफाइड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सर्जिकल एम्फिसेमा. उस एम्फिसेमा, इंसान का आदत क्या है? कहीं पे भी एनलार्जमेंट है और उसके ऊपर स्टेथोस्कोप लगा के सुन. तो एग्जैक्टली व्हेन यू स्टार्ट टू लिसन विद द स्टेथोस्कोप, आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या सुनाई देगा? क्रंचिंग साउंड सुनाई देगा. दैट इज ओनली कॉल्ड एज हमान्स क्रंच. डॉक्टर साहब और एक चीज होती है कंफ्यूजन वाली बात, हर बंदे बताता है होमन साइन कहां पे चेक करते हो? इट इज सीन इन द डीवीटी. होमन साइन कहां पे देखते हो? डीवीटी के अंदर आप लोगों को आता है होमन साइन, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज के टाइम पे होमन साइन यूज नहीं करते हो, बट होमन साइन थियोरेटिकली इज फाउंड इन डीवीटी. वेरी गुड, हमान्स क्रंच हो गया, होमन साइन, शानदार. नाउ जीएटी के अंदर इतना तो पढ़ लिए. ओके, अब डॉक्टर साहब डायग्नोसिस, अब क्या करना चाहिए? डायग्नोसिस. तो diagnosis will be done with the help of contrast. So what we are going to do is CT with contrast. So CT with contrast is basically CECT is the best investigation followed by the treatment. Treatment क्या करना चाहिए? Treatment is मेरा लैंग्वेज में झाड़ू पोछा. So in my language, if I want to tell you in a simplified way, it is basically what? Grooming and mopping. Grooming and mopping is what? Is jadu pocha. So what exactly I'm trying to tell you people is nothing. So first important thing, where is the leakage? Leakage is in the thorax. So open the thorax. How do you open the thorax? With the help of thoracotomy. thorax को open करो, thoracotomy. ठीक है, thorax को ओपन कर दिया. अब लीक क्या हुआ? वॉमिट पूरा लीक हुआ है, तो वॉट एवर वॉमिटिंग कंटेंट्स विच हैज बीन लीक्ड वी नीड टू क्लीन इट. तो एग्जैक्टली thoracotomy करके क्या करना चाहिए? thoracotomy एंड वेरी गुड lavage. This is the basic treatment which we need to do for what? Yes, what is that? That is Bory-Harvey syndrome. ठीक है, अब thoracotomy एंड lavage से काम नहीं चलेगा.
सर छेद तो वैसे ही रहेगा ना, यस। नाउ रिपेयर कैन बी डन, रिपेयर डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द कंटामिनेशन। अगर सीवियर कंटामिनेशन हो गया तो रिपेयर मत करो, एनजी ट्यूब डाल के वो खुद अपना हील होने के लिए छोड़ो। अगर कंटामिनेशन कम है, मतलब इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैला है बिकॉज ऑफ द वॉमिट, इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैला है, देन यू कैन डू द सुचरिंग। तो आप लोगों को एक सिंपल रूल बताता हूं, डोंट suture infected and animal bite tissue। कहीं पे भी शरीर के अंदर एनिमल बाइट हुआ हो और अगर इन्फेक्टेड टिश्यू है, उसको सूचरिंग जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करो। दैट विल मेक योर पेशेंट्स बेटर एंड दैट विल मेक योर क्वेश्चंस इजियर। कहीं पे भी डॉग बाइट आया, सुचर लगाना है क्या, नहीं लगाना है। ह्यूमन बाइट आया, सुचर लगाना है क्या, नहीं लगाना। मंकी बाइट आया, नहीं लगाना। टेक्निक इज व्हाट, ठीक है। चलो, so this is the story of your, what is that, this is the story of your one of the most important topic, that is esophagus, ठीक है। Now once we are done with the esophagus, now I want you people to understand, we did GI drugs, we did GI का required physiology, we did GI के related most important things, what is that, that is your peptic ulcer, then we did all these things which are related to about what is that esophagus, ठीक है। तो आप लोगों को पैंक्रियास में इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगा ऐसे डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। एंड लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स we will do it with what, with the most important aspect, that is only your, what is that, when we are discussing other topics which are endocrine system एंड हेमेटोलॉजी, क्योंकि हेमेटोलॉजी एंड लिवर के साथ बहुत सारे कोरिलेटेड चीजें आती है, तो वहां पे मैं कोरिलेट करके लेके आऊंगा आप लोगों को लिवर सिस्टम को, हेपेटोबिलियरी सिस्टम को, ठीक है। एंड देयर आर अदर स्मॉल टॉपिक्स जो आप बोल देते हैं अकिलेसिया कार्डिया एंड दिस थिंग्स, वो कहीं मिस नहीं होगा। अपना पिक्चर डिस्कशन भी है, सब कुछ है, वहां पे करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या था बच्चों, हमारा टारगेट था अराउंड कितने घंटे दिए थे, 3.5 to 4 आवर। 4 आवर के अंदर इतने सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को हो गया कि इतने में से ही आप लोगों को 10 क्वेश्चन आने का चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, एक चीज करना है, हमारा चैनल को फॉलो करना है, दूसरे लोगों को भी बोलना है चैनल को फॉलो करो। एंड मैं रोज आऊंगा, आई विल कम एवरी डे एंड आई विल टेक अप योर क्लास एंड टीच यू पीपल एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर, व्हाट इज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर like correlating any subject to anywhere, ठीक है। अब देखो यार, मैं तो प्रॉमिस किया था सर्जरी फिजियोपैथ, अब बायोकेम भी लेके आया, अब सीवीएस में एनाटॉमी भी लेके आऊंगा, मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आपका काम इतना है कि रोज देखते जाना है, ठीक है। आपको कोई टॉपिक कम लगेगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करिए, एंड एट द सेम टाइम वीडियो के नीचे कमेंट करो एंड आई विल वर्क ऑन दैट टॉपिक फॉर यू पीपल। एंड इसके अलावा just now I thought one small thing, हर रोज every single day daily we will keep 3 to 4 minutes of our video for small non discussed topic from any subject। मतलब कोई भी सब्जेक्ट में डिस्कस नहीं कराते हैं, पर वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला 3-4 मिनट रोज टाइम लगा के मैं डिस्कस करूंगा। अभी एक टॉपिक कौन सा होगा इसका लिस्ट तो नहीं दे सकता हूं, जब रोज पढ़ाऊंगा वहां से नोट्स बना लेना भैया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू, एंड ऑफ कोर्स हमारा टाइमिंग तो सेम रहेगा। एंड सी we have told you people लाइव का टाइमिंग, बट लाइव का टाइमिंग तो सेटल करने के लिए हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट स्टिल लाइव हो ना हो हम तो साथ है, आपके साथ वीडियो लेक्चर तो कंटिन्यूसली शेयर होगा। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा एनीथिंग इफ यू नीड फ्रॉम मी, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर जयश्वंत
एंड आप लोग यू कैन रिक्वेस्ट डॉक्टर जयश्वंत, ही विल हेल्प यू आउट विथ एनी ऑफ द लेक्चर्स। अगर मेरा तरफ से भी कुछ लेक्चर्स एक्स्ट्रा चाहिए, ही विल डिस्कस विथ मी विथ माय टाइमिंग एंड आई विल डिस्कस विथ डॉक्टर जयश्वंत सर एंड ही विल हैव हिज टीम मैनेज फॉर द वर्क। एंड तो हम लोग एज ए टीम बैठ के आप लोगों को मदद कर देंगे। तो आप लोगों को सब कुछ इतना ही करना है, फॉलो डीपीजीआई चैनल, डीपीजीआई इंस्टीट्यूट का चैनल फॉलो करो एंड शेयर करो। इतना आप करो, बचा हुआ हम करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल का वीडियो में। बाय बाय।